This conference will now be recorded. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So basically, today we are doing graphs. Okay. So what are the necessary conditions, or what are the sufficient conditions so that we can pick the shape of the graph in mathematics? So I have given one problem set to you. Okay. So I have given one problem set to you. So what are the necessary things that you should know about the graph? The first thing is you must know about the domain, range, and asymptotes. Okay, so these are the few things that you must know. Then you should know about increasing and decreasing. Basically, where the function is increasing and where the function is decreasing.
this you can see asymptotes we have done in the class, how to find the asymptotes, how to find domain, and how to find range we have already done. And about increasing and decreasing, it is basically depends on first order derivative. Okay, this is the case. And the third thing is convexity and concavity. So basically you are talking about curvature. So f double dash x, double order derivative. So if you are able to find these three things, then you are able to plot the graph. Is that okay? ये लिख लिया आपने? Can I erase? Yes, sir. Okay. Okay. Now let's do one example. For example, fx is equal to x cube. Okay. So first of all, what we need to find the domain of the function. This is a polynomial function and the domain will be real number. This is fine. The domain of the polynomial functions are the real number. What will be the range then? If domain is a real number and if you substitute the real numbers in this function, then you will also get the real number in the range part. And is there any asymptote? No, because you know the definition for asymptote. Because if you apply limit x tends to infinity, you will not get a finite value. If you apply x tends to some finite value, then you will not get some infinity. And there is no numerators and denominators power relation. So there is no horizontal, there is no vertical, and there is no oblique asymptote. What about increasing and decreasing? Just do the first order derivative. You'll get 3x square. Okay, so at x is equal to 0, f dash x equals 0. Yeah? Otherwise, f dash x is strictly greater than 0.
Okay, so just put it equal to 0. You will find the point where the slope is 0, and check to the left and right of that point. But here, uh, except 0 function is strictly positive just because of square thing. So square is always positive, you know that. Just but add x is equal to 0, that is 0. Now check for the curvature. So for that you will do double derivative. This will be 6x. Now put it equal to 0. So I'm making the sign scheme of f double dash x. So at which point this f double dash x is 0, x equals 0. At x equals to 0, this f double dash x is equal to 0. Okay. Now this means that to the right hand side of x equals to 0, this f double dash x is positive. Pick any value to the right hand side of the 0 and substitute it here, like some positive value. You will get a positive answer. So that means positive. So if you are getting positive double derivative, that means your shape is convex. And if you are getting negative double derivative, because if you pick a negative value from here in this interval, and if you substitute that negative value into this equation, then you will get a negative answer. So that negative thing, and your shape of a function to the left hand side of 0 is concave. Okay, fine. यहाँ तक. Now let's try to plot the graph. एक्सक्यूज मी सर. Hmm. सर हमने ज़ीरो इसलिए एक्स इक्वल ज़ीरो इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे एफ डबल डैश एक्स ज़ीरो आ रहा है. Yes. ओके सर, थैंक यू. So the to the right, acha, the domain for this graph is real number, so we will plot हर जगह plot करेंगे इसे, है ना? We will plot it everywhere, and the range is also real number. So if you apply x tends to infinity, f infinity will be infinity, f minus infinity will be minus infinity. So at that point function will be, going this way direction and in this direction too. But the shape also, the function is strictly increasing. So your graph looks like in this way, positive slope. But at this point, the shape of your function is 0, because f dash x first order derivative is 0 at this point. ठीक है, और convex है after to the right hand side of 0. convex shape ऐसी होती है, ऐसे something. concave shape ऐसे होती है, just opposite. तभी तो मिनिमा आता है ना यहाँ पे, तभी मैक्सिमा आता है यहाँ पे. Okay, so it will look like in this way. See, this is convex shape to the right hand side, but slope is also getting 0 at this point. From this we know that from this box, na? And after that, and before 0 you can see the shape will be concave. So in this way. Now have you understood how we can draw the graph?
ठीक है यहाँ तक? सर हम्म सर वो कैसे पता चलेगा कि कितना कन्वेक्स होगा या कितना कॉनकेव होगा? ऐसा कुछ मतलब नहीं वो होता, तो फिर इतना ओके सर, इतनी प्रिसीजन के साथ नहीं, आप कैलकुलेटर नहीं हो बस, जस्ट ओके सर। ड्रॉ द कॉन्केव एंड कॉन्केव शेप। प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं चेंज करता हूँ स्लाइड। सर एफ डैश एक्स का बस 0 पॉइंट है, बस उसका वही काम है। F dash x basically tells you about the increasing and decreasing of the function. So you can also make the sign scheme of F dash x. So for example, if I put 0 here, so to the right hand side, I will get positive sign. To the left hand side, I'll also get positive sign. So you just need to compare where the function is increasing and where the function is decreasing. So basically, this is the threshold for that thing if you put it equal to 0. तो ग्राफ में इसका क्या काम है? Graph में you are able to know ना, you are able to know कि this is increasing ऐसे लेफ्ट टू राइट। अगर सपोज ये नेगेटिव होता तो आपको एक आइडिया हो जाता ना फंक्शन ऐसे जा रहा है। ओके सर। किसी और के साथ भी हो रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को? ओके सो लिख लिया आप सभी ने ये? ठीक है ना? Yes, sir. ओके वो सर वो 1 मिनट ग्राफ दिखा दो सर एक बार। ओके सर। now I'm doing one more example so that you are able to know this thing in a better way, like fx is equal to x square. So first thing is, what is the domain? Real numbers. And what is the range? Positive real numbers na, for this function. Is there any asymptotes? No. Second thing, the first order derivative, so that will be 2x. So when you put it equal to 0, the sign scheme will be x equals 0. To the right hand side of 0, you will get positive sign. To the left hand side of 0, you will get negative sign. And what about the third thing? F double dash x is equal to 0. Sorry, f double dash x is equal to 2, which is positive. So the shape will be convex everywhere.
Okay, so the graph will look like in this way. See, to the right hand side, अच्छा 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी? 0. Function will pass from this point, and to the right hand side of 0, your slope is positive ना. So right hand side 0 के slope कुछ positive slope में दिखेगा इस तरीके से, और to the left hand side of 0 your slope is negative, थोड़ा इस तरीके से दिखेगा नेगेटिव शेप में. लेकिन रेंज कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है, तो ग्राफ x एक्सिस के you will draw this graph above the x axis, है ना, because the range is positive numbers, non-negative you can say. But you can see from the third point the shape is convex. So convex shape कैसे होते हैं? In this way. So graph will look like in this way, parabola shape. At this point slope is 0, and before 0 your slope is decreasing, see, negative slope, and after 0 it is increasing, and for all x it has a convex shape. Okay, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है ग्राफ कैसे बनाते हैं? Yes, sir. बेसिकली व्हाट मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं मेनली, उसको अगर हमें मिल जाए तो हम, ये नहीं कह रहा आप एग्जैक्ट शेप बना लोगे, बट हाँ आप एक रफ स्केच बना सकते हो फॉर श्योर. आज 93 स्टूडेंट्स आए हैं. ठीक है, ओके. मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सेट्स दिया था ना इसके रिगार्डिंग, उसे मैं आपको सिखाता हूँ उसमें से कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मैं ये वाला ग्राफ पिक करता हूँ जो फर्स्ट नंबर पे है, y equals e raised to power x. Okay, and then y equals ex plus 1 and y equals ex minus 1. Okay, let's draw this graph. So ex की शेप कैसे आती है? वही फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट क्या है? डोमेन एंड रेंज. व्हाट इज डोमेन फॉर ex? Real numbers. Exponential functions are continuous in real numbers. The domain of the exponential functions are real numbers. What is the range? Sorry, range 0 to infinity. Is 0 included? Yes, can anyone tells? 0 include होता है इसमें?
power minus infinity. इंक्लूड होगा। रेंज में 0 इंक्लूड करेंगे हम? नहीं सर, Yes, नहीं sir. होगा। नो सर। नहीं करेंगे ना? क्यों? क्योंकि इसमें एसिम्प्टोट होता है ना, व्हेन लिमिट x tends to minus infinity, your e raised to power x is approaching to 0. This is the horizontal asymptote ना, ठीक है? एंड f इंफिनिटी पे तो आपको पता है e इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, e 0 क्या होगा? 1 होगा। 0 पे वैल्यू 1 होगी। 0 पे काफी आसान होता है देखना ना फंक्शन को, दैट्स वाई एक 0 पे देख लेना चाहिए कि 0 पे कहाँ पे जा रही है वैल्यू। एक पॉइंट ये भी कंसिडर कर लेना उसमें, 0 पे हमेशा चेक करना, क्योंकि 0 पे इट विल बी इजियर फॉर यू टू चेक। एंड व्हाट अबाउट सेकंड थिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना, dy by dx is e raised to power x, and the range of e raised to power x is always positive, strictly positive, so that this differentiation is strictly positive. So this function is increasing for every time na, everywhere it is increasing. What about double derivative d2y by dx square? Again ex, which is also strictly increasing. This means the function has a convex shape. Excuse me, sir. Yes. Sir, इसमें vertical asymptote नहीं होगा कोई? No, there is no vertical asymptote. For vertical asymptote, there is a point where function does not define. Okay, sir. Thank you. At 0, your value is 1. Okay, at 1. And so when x is tending towards to minus infinity, your value is approaching to 0, and it has a convex shape and it's increasing function. So something like in this way. ठीक है यहाँ तक? This is the graph of ex. Is this fine? Now what is the graph of y is equal to ex plus 1? It's very easy. You need to just, अगर if I substitute 0 here इस equation में, just see, if I substitute 0 here, then I'll get 2, because 1 plus 1 is 2. So your vertical intercept will shift up. Your vertical intercept will shift up by 1 unit, because 1 is adding to this entire function. So y is equal to ex plus 1. Graph will in this way. 1 से ये जा रहा था, तो ये कहाँ से जाएगा? It will pass through 2 and same behavior. ये हो जाएगा y is equal to ex plus 1. What about this one? This will shift down by 1 unit. This will shift down by 1 unit. Okay, this will shift down by 1 unit, so it will pass from 0.
क्योंकि पहले 1 से जा रहा था, नाउ इट विल पास फ्रॉम 0, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो ना ex - 1 के लिए। Is this okay? Yes, sir. So, sir, in EX -1, the y can also be negative. हाँ हाँ, सर हमने ऊपर तो x एक्सिस के सब ऊपर से ही लिया है, इधर नीचे लिया हाँ, बस एक्सिस। बिकॉज देयर इज -1 ना, ओके। वो पैरेलल ग्राफ ही तो होगा उसके। ये ex का ग्राफ है, सॉरी। दिस इज द ग्राफ ऑफ ex। वो पैरेलल शिफ्ट करा ना आपने 1 यूनिट नीचे हर जगह से। ठीक है, सर चेंज अगर करो। e की पावर -x हो जाए तो? हाँ, सारे केसेस को कंसिडर करते हैं अभी। आप पहले अभी इतना बना लिया आपने। सर ये जो तीनों ग्राफ्स है ये हम एक ही डायग्राम में बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चेंज कर दो स्लाइड। Okay, changing the slide. So what about y is equal to x graph? ऐसे आता ओरिजिन से, ठीक है। What about y is equal to -x ग्राफ? सी, आपको पता है वो ऐसे जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहां से चेक करूं तो देखो, ये सपोज 1 पे वैल्यू क्या मिल रही थी मुझे, 1, है ना। नाउ आई विल गेट यही सेम वैल्यू -1 पे ना। आई एम गेटिंग 0 पे 0 वैल्यू, और -1 पे मुझे वैल्यू मिल रही थी -1। नाउ अब मुझे 1 पे वो वैल्यू मिलेगी, तो ग्राफ इस तरीके से जाता है ना फिर। सॉरी, ये ओरिजिन से जाएगा ग्राफ, ठीक है, ओरिजिन से। आई एम अगेन रिपीटिंग, at 1 I am getting this 1, at 1 I am getting this 1। now the function will be y is equal to -x। so at -1 I am getting the, see, substitute -1 here, you are getting -1, you are getting 1, है ना, जो पहले मुझे यहाँ 1 पे मिल रहा था आंसर। and now substitute 1 here, you will get -1। अब जो मुझे -1 पे मिल रहा था पहले, यहाँ आंसर -1, I am getting at 1। ठीक है, यहाँ तक। y equals ex and y equals
e minus x. You know the graph of y is equal to ex in this way. Now what is the graph of e raised to power minus x? See, आपको जो ये 1 पे हाइट मिल रही है, देखो अब ये हाइट आपको कहाँ पे मिलेगी? -1 पे सेम हाइट। ओके, 0 पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? आपको ये पॉइंट मिलेगा, अगेन आपको ये पॉइंट मिलेगा, एंड इस पॉइंट पे आपको इतना ही सेम गैप मिलेगा। सो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर अगर एग्जाम में मतलब ये 2-3 ग्राफ एक साथ बनाने को आते हैं तो फिर हमें e टू द पावर माइनस एक्स के लिए अलग से सब चीज नहीं निकालनी पड़ेगी ना? देखो हम अगर डायरेक्टली बना। हाँ डायरेक्टली बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो। यू कैन राइट वी आर ट्रेसिंग दिस e रेज टू पावर माइनस x ग्राफ with the help of y is equal to ex ग्राफ, बस। बट कोशिश करना, क्योंकि देखो इसमें अगर आप एक में ही बनाओगे तो थोड़ा कंजेशन दिखेगा। सो ट्राई टू राइट आंसर्स नीट एंड क्लीन। तो नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए 2 ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े तो बना दे। ये सर 2 बना देंगे लेकिन मतलब डोमेन और रेंज बार बार नहीं निकाले ना, वो तो फिर ट्रेस हो ही जाएगा उसमें। हाँ हाँ, ट्रेस कर देना। थैंक यू। ठीक है यहाँ तक? ओके, we draw minus y is equal to x square. एक्सक्यूज मी सर। Yes, सर e रेज टू पावर 2x का ग्राफ कैसे बनेगा? सेम बनेगा ना, e raised to the power 2x का ग्राफ सेम बनेगा जैसे e raised to power x का बना था। तो उसके लिए भी ऐसी डोमेन रेंज अलग से निकालते हैं। डोमेन सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगी। e raised to power 0 is 1, e raised to power d by dx सेम रहेगा, तो सेम शेप रहेगी ना। थोड़ा मतलब हल्का बहुत डिफ्लेक्शन होगा पुरानी शेप से, बट रफली हम चेक करना चाहते हैं ना, वो शेप ऐसी रहेगी। ठीक है। ठीक है, यस थैंक यू। जैसे हमने पहले किया था, इससे पहले एक्स क्यूब है ना, आप एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहे हो, आप एक्स रेज टू पावर 5 का ग्राफ बना रहे हो, आप एक्स रेज टू पावर ऑड का ग्राफ बना रहे हो, है ना। सो जितनी भी आप एक्स रेज टू पावर ऑड का ग्राफ बनाओगे, दैट विल बी लुक लाइक इन दिस वे। सर ऑड मतलब ग्रेटर देन 1 या फिर उससे छोटा भी चलेगा? ऑड नंबर लाइक 7, 9। अच्छा अच्छा ठीक है। सर ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 का ग्राफ तो चेंज हो जाएगा ना? सॉरी, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 का ग्राफ में तो चेंज आएगा ना? you want to say in this thing?
यस सर। और या ये नो सर, पहले वाला। दिस वन, हाँ चेंज आएगा। नाउ यू विल गेट 0 at -1, ठीक है। अभी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ते ना, धीरे धीरे चलते हैं बेसिक बेसिक टर्म्स में। तो ये आपको समझ आया, ऑड पावर का सबका सेम ग्राफ होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे आप ये जो पैराबोला है, आप x⁴, x⁴ 6, x⁴ 8, x⁴ 10 इन सब का बनाओ तो सही रहेगा। x⁴e1 का ग्राफ सेम ही रहेगा, पैराबोला शेप ऐसे। ओके, सो सेम ही शेप रहेगी, बस थोड़ा बहुत डेविएशन आता है x⁴ और x⁴ 6 का, वो आप देख लेना कैसे रहेगा। जितनी ज्यादा पावर वाइडर होगी उतना ज्यादा स्लोप बड़ा होगा, है ना आपका, मतलब x⁴ इसके अंदर कंटेन्ड होगा ना। ऐसे ओके, एंड तो शेप्स सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। नाउ इसके बारे में देखते हैं। तो अगर मान लो y = x², यू नो द ग्राफ ऑफ y = x², तो y = -x² का कैसे, y x² का जो ग्राफ है उसका जो रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी जस्ट उसको मिरर शिफ्ट दे देना x एक्सिस के अराउंड ना, ये x एक्सिस है, इसका मिरर इमेज बना देना x एक्सिस के अराउंड इन दिस वे। जितना गैप यहाँ पे है उतना ही नीचे भी गैप होगा, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे होगा, ऐसे। यहाँ 0 से जा रहा है, ये भी 0 से जाएगा, ऐसे मतलब उसी उतना ही गैप होगा। तो गैप है ही नहीं हुआ, तो गैप इसलिए वहीं से पास किया। ठीक है यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, y = ex था, अब y = -ex। तो y = ex का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, y = अब ये -ex का ग्राफ कैसे बनेगा, ये माइनस है यहाँ पे, उतना ही गैप आपने नीचे देना है, ये गैप इतना देना है, ये गैप आपने इतना देना है, सो इट विल लुक लाइक इन दिस वे। ठीक है यहाँ तक। इज दिस ओके यहाँ तक। यस सर। और क्या बताया था मैंने आपको ग्राफ्स में, प्रॉब्लम सेट का है। प्रॉब्लम सेट ग्राफ्स, ओके।
हाँ, मैक्स मिन के हम देखेंगे, बट पहले धीरे धीरे बढ़ते हैं ना आगे। अब जैसे like see in this way, y is equal x minus 1 स्क्वायर। मतलब ये जो ग्राफ्स है आपको इतना ना इनको प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि x स्क्वायर का ग्राफ के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट्स क्या क्या चाहिए थे? डोमेन, रेंज, एसिम्पटोट्स, है ना। सेकंड क्या चाहिए था? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड थर्ड पॉइंट क्या चाहिए था? कॉन्वेक्सिटी के लिए, बेसिकली कर्वेचर के लिए डबल डैश। पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव है तो कॉन्केव। So these are the things that you require for the graph, but you already know the graph of y is equal to x square. So you can trace these graphs by using the basic graph. Okay, समीक्षा, अभी थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो आप। अभी हम x स्क्वायर का कर रहे हैं। इसके आफ्टर दैट आई विल टेल यू द मॉड ग्राफ आल्सो। So y is equal to x square you will do in this way, ठीक है। So अब इस केस में क्या दिख रहा है आपको? x माइनस 1 दिख रहा है। तो आपका जो ये पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, दैट इज 0। मतलब जो कहते हैं ना जीरोस होती हैं वैल्यू, जीरोस जिसे हम बोलते हैं। फंक्शन जीरोस कहाँ पे हो रहा है? मतलब फंक्शन का जीरो का मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है? व्हाट इज द रियल root of this function? The real root of this function is 0. Now the real root is changing, and it is changing. Put it equal 0, the inside term. You will get x is equal to 1. Okay, so basically your function is shifting horizontally to 1 because you have a new 0 of this function and the entire shape is same. Have you understood this thing? कैसे हुआ ये? So similarly, y is equal to x plus 1 square will shift to the left hand side in this way at minus 1. मतलब you will be so quick by drawing graph if you know the basic things ना। Because there will be new 0. वो 0 कैसे होगा? Just put it equal to 0 and you have a new real root at x is equal to minus 1. So your function gets 0 value at minus 1 and it has a even power shape. So your function will look like in this way, parabola shape. नोट कर लिया ये। एंड जिसके लिए मीटिंग थोड़ी इरेगुलर हो रही है, सो डोंट वरी, दिस मीटिंग इज ऑन रिकॉर्ड, सो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप एज वेल। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ओके, या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक यस सर। अब जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ हमने बनाया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। उसकी शेप हमने कैसे देखी थी? ऐसे ना, ये शेप थी। व्हाट अबाउट अब आप बहुत क्विकली x माइनस 1 एंटायर पावर क्यूब का बना दोगे। वो कहां से जाएगा? 1 से। सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्यूब। व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब? वो कुछ ये माइनस 1 से पास आउट करेगा।
फाइन, ठीक है। y is equal to mod x, some students saying y is equal to mod x, तो mod कैसे खुलता है? y is equal to positive x and minus x if inside value is positive, inside value is negative. So when x is 0, it will look like a vertical line oblique line passing through the origin, and it will be like when x is negative minus x. ये वाला जो ग्राफ होता है ये नीचे का, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज y is equal to x सिर्फ हम 0 पॉजिटिव पे ही लेते हैं। तो ये आपका y is equal to mod x का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब y is equal to mod x प्लस 2 का ग्राफ कैसे होगा? ये 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट में चेंजेस आए हैं ना 2 यूनिट्स के। अगर ये शेप होती y is equal to mod x minus 3, तो ये 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाता है ऐसे, क्योंकि इंटरसेप्ट में -3 के चेंजेस आया है। y is equal to x minus 1 mod होता है ऐसे, तो राइट साइड पे चेंज हो जाता, शिफ्ट हो जाता 1 पे, ठीक है। y is equal to x plus 2 mod, -2 पे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट पे। क्लियर है तक? सर यस। सर हाँ, जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो रहा है वो एक्स में मॉड जो हम ऐड कर रहे हैं वैल्यू वो मॉड के अंदर ही कर रहे हैं ना? बेसिकली उसका कहने का पीछे का सिग्निफिकेंस ये है, योर रियल रूट इज चेंजिंग ना, रियल रूट इज चेंजिंग आफ्टर दैट। यस सर। And Yashita, you are asking for what if it is x cube plus 3? X cube plus 3? X cube plus 3 basically your graph is shifting above the 3 units ना, कुछ इस तरीके का। Yes, sir. I wanted to ask when will there be a horizontal change and when will be the vertical change? Vertical change x cube plus 3 में। Yes, sir. The graph is moving upward Yes. on the y-axis. Yeah. Sorry, क्या कह रहे हो आप? सर y-axis पे मूव करेगा, मतलब y upward मूव करेगा when there will be x cube plus 3. x cube का ग्राफ ये था, ठीक है। Yes, sir. And now I'm talking about y is equal to x cube plus 3 ना, so 3 units upward shift कर दो इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट Yeah, को, yeah. तो ये कुछ इस तरीके का हो Yes, sir. जाएगा, ओके। Okay. क्वेश्चन 1 का के पार्ट। एक्सक्यूज मी सर। सर जो y इज इक्वल टू अभी एक्स क्यूब प्लस 3 वाला था उसमें सर x इंटरसेप्ट भी तो चेंज हो रहा है, x की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता? इसमें हाँ हाँ हाँ। इसमें x इंटरसेप्ट, हाँ x इंटरसेप्ट भी चेंज हुआ, यहाँ पे हो गया, आई एग्री। यस सर, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे चेंज हो रहा है? नहीं, वो बेसिकली क्या होता है ना, मैंने बताया वो जीरो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको जीरो रखोगे, मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, किसका जीरो क्या था? जीरो था, मतलब फंक्शन इज गेटिंग जीरो एट दिस वैल्यू, है ना। यस नाउ सर। व्हाट, फंक्शन की वैल्यू जीरो होने की क्या हो जाएगी? -3 की पावर 1/3। यस सर। तो चेंज होगा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।
And sir, if it is y is equal to x plus 3 का whole cube, then बताया तो था यहाँ पे x plus 3 का whole cube, मतलब इसको 3 मान लो 1 की जगह, so it will shift 3 units left to the 0, मतलब ये 0 था on the ऐसे, x-axis. ठीक है, तो ये अब ऐसे हो जाएगा, हाँ, Okay. x plus 3 whole cube. सर लेकिन इसका कर्वेचर तो मतलब y एक्सिस के बाद और पहले ही चेंज होगा ना? देखो कर्वेचर इस 0 वाला जो पॉइंट होगा ना, इस 0 वाला पॉइंट इसी पे चेंज होगा, इसके बाद ऐसे यहाँ से कॉन्वेक्स एंड इससे पहले कॉनकेव। ओके सर। सारी चीजें सेम रहेगी, बस हम उसको ट्रेस करना सीख रहे हैं। ओके, सब चीजें सेम रहेगी जो ओके फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना, ये देखो कि डोमेन सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगी, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेम रहेगा, एंड ये सब सेम रहेगा। तो तभी मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक ग्राफ पिक करवाए थे ताकि आप उनकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कर सको। फिर मैंने आपको ये करवाया था, है ना, ये वाला, फिर ये करवाया था, ठीक है। तो जिनका मीटिंग थोड़ी इरेगुलर हो रही है वो स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड का, या किसी ने अगर लेट ज्वाइन करा है तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, फोटो खींच सर लेना प्लीज इसके। रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग कर दूंगा सेंड, बट आपके पास इतना टाइम होगा, आप ये भी क्लास लो और रिकॉर्डिंग भी देखो। नो सर, ओनली स्टार्टिंग 10-15 मिनट्स मिस हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड ओनली। ओके, इसकी भी फोटो ले लेना एंड इसकी भी ले लेना फोटो, जो भी है। यस ओके सर। सर मतलब हमें हर एक ग्राफ के लिए वहाँ पर 3 स्टेप दिखाने ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में, या फिर अगर हमें आता है तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं? अगर आता है तो बेसिक ग्राफ को बताना कि ये दिस इज द मेन ग्राफ एंड वी कैन ट्रेस दिस ग्राफ बाय यूजिंग दिस ग्राफ। Okay, one student is asking y is equal to, oh, k part na, so सबसे पहले आप ये देखो, आपको mod x का ग्राफ बनाना आता है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, आप y is equal to x minus 1 का mod का ग्राफ बना सकते हो? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, y is equal to minus mod x minus 1 का ग्राफ बना सकते हो? क्या होगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इज देयर एनी डाउट यहाँ तक, बताओ। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मैं +2 कर दूं तो +2 के केस में क्या होगा, 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 समथिंग 2, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, 2 माइनस मॉड x माइनस 1। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करा, जो नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब इसकी सारी वैल्यूज को आपने क्या कह दिया, पॉजिटिव कर दो। ठीक है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यूज कहां से कहां तक थी, जस्ट सी, ये ग्राफ है आपका, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज ये है रेड वाली, एंड इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आपका जो रेड वाला ग्राफ है, इसके बाद ये नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई ना, मॉड लगा दिया आपने।
तो आपका ग्राफ W शेप में दिखेगा, इस शेप में। So the graph of y is equal to this thing looks like in this way. Okay. Can you explain the last part again? Okay. So आपका जो ग्राफ आया यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलो, it will look like in this way ना, 2 minus x minus 1 mod, ये जो डॉटेड कर्व आया आपका। Now I'm taking the mod because mod given the question में, ये देखो, so I'm taking the mod. Mod क्या करता है? It will make everything positive. So this line is always positive because it lies above the x-axis. This is x-axis. It is above the x-axis. है ना? This is x is equal to 1. So this is above the x-axis. Now these negative values will also become positive. तो जितना गैप इतना यहाँ था, तो इतना ही गैप ऊपर भी होगा ना, इतना गैप यहाँ था, उतना ही गैप यहाँ पे भी होगा. So it will become in this way, W shape, because all the values become positive. Positive तो Can it positive ही रहेंगे, overlap लेकिन on the negative x-axis also? positive रहेगा. Sorry, क्या कह रहे हो? Like for the left part, I understood that it is going to be, in the upward direction only, because otherwise. But यहाँ पे भी तो ये negative है ना? कहाँ पे नेगेटिव है? नहीं. ठीक है, हाँ. ठीक है, okay. You can draw, I think you can tell me where it is negative. Try to draw if you want. और इस समझ आ गया आपको? आपको समझ आ गया? Yes, I understood. ओके. एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा मेरे से कि सर व्हाट अबाउट दिस? सो दिस विल इन, ये तो बहुत डिफरेंट ग्राफ है और बहुत आसान भी है. तो when x is greater than 0, this is positive, so x plus x, this will become 2x. When x is negative, then this will become minus x plus x, so it will 0. So you will have this thing, 2x 0 if x is positive, if x is negative. So 2x का ग्राफ ऐसा जाएगा कुछ when x is positive, and 0 का ग्राफ ऐसा जाएगा कुछ when x is negative. So your graph looks like in this way. ठीक है? सर इसके प्रीवियस वाले में ये एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच करेगा ना, राइट में? वो तो आपको निकाल के देख लेना ना. 0, हाँ शायद एक पे ही करेगा राइट पे, और एक पॉइंट पे लेफ्ट पे करेगा टच. तो लेफ्ट पे नहीं करेगा ना, लेकिन मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगा.
लेफ्ट पे भी तो करेगा ना, कौन से पे आ रहे हो, इस पे या कहाँ, इस पे, इस वाले ग्राफ पे देखो, एक टच हाँ तो ये दे वाले रहा में। है, दो टच नहीं दिख रहे आपको? दो टच दिख रहे नहीं दिख रहे? हाँ ठीक है, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? आप बता सकते हो मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? आप देखो ना किन पॉइंट्स पे वैल्यू 0 मिल रही है आपको, इसे 0 के इक्वल रखो, 2 - x - 1 = 0। सो बेसिकली ये वैल्यू आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 चाहिए, हाँ। तो कैसे आ सकती है, या तो 3 ले लो या फिर -1 ले लो। सो ये 3 हो जाएगा या -1 हो जाएगा। हाँ सर, ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर प्रॉब्लम चेक की क्वेश्चन नंबर 6 में ना मतलब क्यूब के ग्राफ से स्क्वायर का ग्राफ कैसे ट्रेस हो सकता है? अच्छा आई थिंक वो टाइपो हो गया होगा, क्यूब ही होना चाहिए वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को करेक्ट कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग you have to trace y is equal to, you know this graph, you need to trace y is equal to x - 3 cube plus 2। तो कैसे करेंगे ट्रेस, x - 3, so it will shift to the right hand side, क्यूब वाला ग्राफ ऐसे, और क्योंकि क्यूब का ग्राफ ऐसे जाता है ना समथिंग, ये क्यूब का ग्राफ हो गया, ये x - 3 क्यूब का ग्राफ हो गया, और अब इसको 2 यूनिट्स अपवर्ड उठा दे ऐसे, ठीक है यहाँ एक्सक्यूज मी तक। सर। हाँ सर जब हम 2 यूनिट्स ऊपर उठा रहे हैं, हमें ये तो नहीं ध्यान देना ना कि ग्राफ और कहाँ से पास कर रहा है, कौन से एक्सिस के कौन से कोऑर्डिनेट से। ध्यान देना ध्यान, अच्छा, ओके सर। धीरे धीरे प्रैक्टिस सर करके क्वेश्चन नंबर समझ आ जाएगा। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर व्हाट? सर क्वेश्चन नंबर 5 में EX प्लस K का ग्राफ बनाना है और K की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट ग्राफ बन सकते हैं जब हम उसको ऊपर वर्टिकली शिफ्ट करेंगे तो। नहीं, हाँ वो तो बन सकते हैं, लेकिन आप एक के समथिंग कुछ फाइनाइट ले लेना ना, ऐसा तो नहीं लिखा के इज इनफाइनाइट, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के कुछ हो सकता है, ठीक है, और उसको आप के ही अज्यूम कर लो ना, आपको नहीं पता के क्या है, के कैन बी 1000, के कैन बी 100। हम यहाँ स्केलिंग वे में ग्राफ नहीं बनाते कि एक फुट्टा लिया और फुट्टे से खींच के बिल्कुल मेजर कर रहे हैं स्केल लेके, ऐसा नहीं करना ना। इट्स लाइक ये अगर EX है तो ये K प्लस EX हो जाएगा, दैट्स इट। अब ये K आप बोलो कि सर व्हाट इज K कैन बी 1 लाख 1 करोड़, मुझे नहीं पता, ये गैप 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, बट हाँ देयर हैज टू बी सम पैरेलल शिफ्ट बिटवीन दीज टू कर्व्स, दैट्स इट। And the distance between the two curves will be K, right? हाँ K कैन बी एनीथिंग, K बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिख दिया ना मैंने। Okay sir. सर एक बार आप 7 क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ वो मैंने देख लिया है, लेकिन अभी आपके लिए मैं आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि फिर कॉन्वेक्स सेट पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। ओके सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग a student claims that x plus 1 square and x square plus 1 are the same thing, so वो कह रहे हैं can you claim geometric argument to show that this is wrong। तो geometric argument क्या देना आपने, दोनों के ग्राफ बनाने हैं बेसिकली।
सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर का ग्राफ? इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट। और इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो -1 पे ग्राफ जाएगा ना इसका ऐसे। तो आप दिखा देना कि देखो गलत है बच्चा, राइट वाला ग्राफ ये था और लेफ्ट वाला ग्राफ ये है। ठीक है, log x का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, आपको पता है log x का ग्राफ कैसे बनता है? देखो फर्स्ट, अब ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी जो आज की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में कराया था आपको। सो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले डोमेन निकालना होता है। डोमेन क्या होगा इसका? क्या होता है डोमेन log x का? 0 to infinity and 0 is not included. And what about range? Range is real number ना, basically -infinity to infinity. Is there any asymptote? Yes. Limit x tends to 0, log x is approaching to -infinity, है ना? तो सेकेंड पॉइंट क्या बताया था मैंने? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो dy by dx x कर दो, dy by dx कर दो, you will get 1 by x. Since the domain is always positive, so the first order derivative is always positive, so function is strictly increasing. What about double derivative? -1 by x square. So this is always negative because this is always positive, so entire value becomes negative. So function has a concave shape for every value of x. और 0 पे मैंने आपको बताया था 0 पे चेक कर लेना, बट 0 पे तो ये नहीं हो पाएगा। 1 पे चेक कर लो, log 1 क्या होगा? क्योंकि पता ही रहता है 0, सो log 1 पे वैल्यू 0 और कॉन्केव शेप है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 पे एसिम्प्टोटिक है, -इन्फिनिटी जा रहा है और शेप कुछ इस तरीके की निकल कर आई। ये 1 पे कट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक इसका ग्राफ? सर log 0 -infinity होता है। हम्म, देखो नीचे जा रहा है ग्राफ। वो प्लॉटिंग के एक बार फिर से बता दो कि प्लीज। कहाँ से बताना है आप बताइए? बस ये प्लॉटिंग वाला पार्ट, थर्ड वाले पॉइंट के बाद। तो मैंने ये बताया कि log 1 0 होता है तो फंक्शन यहाँ से जाएगा, और आप ये देखो कि 0 पे लिमिट -इन्फिनिटी जा रही है ना, तो जैसे जैसे आप 0 पे मूव करोगे आपका फंक्शन नीचे से नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, नीचे ऐसे। दिस इज बेसिकली अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। और 0 पे 1 पे ये, और शेप कॉन्केव भी है, तो कॉन्केव शेप ऐसी होती है, तो 1 पे वो इस तरीके का अप्रोच होगा, कॉन्केव शेप। और फिर उसके बाद कॉन्केव शेप हर जगह है ना, और वो इंक्रीजिंग में भी है फंक्शन, तो ये ऊपर ही चला जाता जाएगा, इंक्रीजिंग है और कॉन्केव शेप इस शेप में ही ऊपर बढ़ेगा, कॉन्केव शेप में ऊपर बढ़ता जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब क्या करते हैं, ये आपने सीख लिया, इसका बनाते हैं हम log x से हम ट्रेस करेंगे log -x को।
ट्राई करो इसका ग्राफ बनाने का अपनी नोटबुक में। सबसे पहले log x का ग्राफ बनाओ। सो बेसिकली ये आपका क्या है, log x का ग्राफ। अब आपको मैंने बताया था जितना x के इधर वैल्यू है उतना ही माइनस x पे वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर 1 पे आंसर क्या मिल रहा है आपको, log 1 क्या था आंसर, 0 ना। सो log -1 क्या आ जाएगा आंसर, 0, क्योंकि ये log 1 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो log -1 इज 0। जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर है। सो बेसिकली जितना गैप आपका इधर था उतना ही गैप आपका कहाँ होना चाहिए, इधर। जितना गैप आपका इधर था उतना ही गैप आपका इधर होना चाहिए। सो मैं इसको इस कलर से ट्रेस कर सकता हूँ। Something like this way. This is log -x। ठीक है, and both are approaching to 0, मतलब asymptotic है इस लाइन के। ओके, सो log -log x का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, we can trace log x from ex, but चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना ना, दैट्स व्हाई। मत कर लेना आप ट्रेस सृष्टि। y इक्वल्स -log x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो आपका ये डिस्टेंस था ना, ये y का डिस्टेंस, ये कितना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव ना। इतना ही डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, 1 पे तो 1 ही रहेगा। ये डिस्टेंस इतना था, अब ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा। ये डिस्टेंस इतना था यहाँ से पॉजिटिव, वही डिस्टेंस अब नेगेटिव हो जाएगा इतना। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस इतना था, यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव से। तो शेप भी आपकी चेंज होती हुई दिखेगी कुछ इस तरीके की। ये सॉरी, ऊपर वो वहां नहीं जाएगा, क्रॉस हो गया सॉरी, वो इधर ही ऐसे शिफ्ट रहेगा, ऐसे एसिम्प्टोटिक रहेगा वर्टिकल एक्सिस पे। दिस इज -log x। ठीक है, बेसिकली -log x का ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको, 1 पे 0। चेंजिंग द स्लाइड। ओके, हाँ बोलो। सर एक्चुअली एक डाउट है, -log x पर तो इस तरह से ग्राफ ने चेंज किया, बट log -x पे मिरर इमेज ऐसे बनी थी सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बेसिकली ये y की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं और ये x की वैल्यूज में चेंजेस हुए थे। ओके सर, तो x की जब आप वैल्यू x के की वैल्यू चेंज में एक चेंजेस कर रहे हो, मिरर इमेज में। y के मिरर इफेक्ट के बेसिस पे बन रहा है। और जब आप y की वैल्यूज में चेंजेस कर रहे हो तो वर्टिकली मिरर इमेज आ रही है, x की वैल्यू में हॉरिजॉन्टली आ रही है, क्योंकि x ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है ना।
तो आप हॉरिजॉन्टली हाँ जी, हाँ मिरर, जी। और जब y की वैल्यूज में कर रहे हो तो y वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल मिरर इमेजेस बनेंगी। ओके सर, ओके। ये देखो आप, y इज इक्वल टू log x mod, तो ये y इज इक्वल टू log x का ग्राफ था। मॉड log x का कैसा हो जाएगा? मॉड क्या करता है? बेसिकली पॉजिटिव करता है वैल्यूज को, तो ये तो पॉजिटिव थी क्योंकि अबव ये लाई कर रही है अबव द y एक्सिस, ठीक है, बट ये शिफ्ट हो जाएगी ऊपर इतने डिस्टेंस से, तो आपका इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये कॉन्वेक्स शेप हो गई, ये कॉनकेव शेप थी। सर ये वाई एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा? y एक्सिस पे एसिम्प्टोटिक होगा ऐसे ना, ठीक है। व्हाट अबाउट log mod x? एक्सक्यूज मी सर, सर नीचे वाला कॉनकेव कैसे है? क्योंकि वो ऐसी शेप है। हम कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी में पढ़ेंगे डेफिनेशंस, ठीक है, अभी इतना मत सोचो। ओके सर, बट इस पॉइंट पर अगर नीचे हमें कॉन्वेक्स बनाना होता है तो फिर वो ऑपोजिट होता है इसके। हाँ, तो वो ऐसे मिलता है, लेकिन फिर वो एसिम्प्टोटिक नहीं हो पाएगा वर्टिकल एक्सिस पे, फिर अच्छा अच्छा, ठीक है ओके सर। उसकी शेप ऐसे हो जाती है। व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? सर x तो वैसे भी पॉजिटिव ही है तो वही रहेगा शेप। हाँ, तो बेसिकली ये भी कर्व रहेगा, ठीक है, और ये कर्व भी रहेगा। दोनों कर्व रहेंगे log mod x में, ठीक है। ये सर इस log x, फंक्शन के दो कर्व्स होंगे। हाँ, क्योंकि ये x के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस x के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। या अंदर तो हमें पॉजिटिव चाहिए होता है ना, ये वाली वैल्यू। यस सर, ओके। आई थिंक log के मैंने आपको सारे ग्राफ करवा दिए, ठीक है। सर सर log 1/x का कैसे बनेगा? क्या कह रहे हो? log सर log 1/x। अब देखो, ये आप इससे ट्रेस नहीं कर सकोगे, है ना, तो इसके लिए आपको वही तीन चीजें चेक करनी पड़ेगी, डोमेन, रेंज एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड कर्वेचर, ठीक है। तो लेट्स से तो डोमेन क्या होगा इसका? x is not equal to 0, पहली चीज तो ये, and x is positive also, so बेसिकली ये आपका डोमेन हो जाएगा, है ना। रेंज क्या होगी? वो रेंज इससे डिटरमिन होगी कि लिमिट अगर आप x टेंड्स टू 0 लो तो आपकी log इन्फिनिटी हो जाएगा, so आंसर विल बी इन्फिनिटी। लिमिट x टेंड्स टू मैं इन्फिनिटी लेता हूँ, so log 1/x it will be log
1 by infinity, it is approaching to 0. And it is approaching to minus infinity. ठीक है, फिर इसका आप लो ग्राफ। सर ये log 1/x तो माइनस log x ही हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब पहला पॉइंट क्लियर है, पहला ले लिया हमने। अब सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेकंड हम कर रहे हैं y एसिम्प्टोट हुआ ना, ये रहा वर्टिकल। ठीक, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा ना? नहीं है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। अगर तो infinity वर्टिकल भी तो नहीं है। क्या कह रहे हो? वर्टिकल है तो ये रहा। सर लेकिन कोई फाइनाइट नंबर नहीं है ना, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? रिवाइज करके आया करो क्लास में। फाइनाइट नंबर नहीं दिख रहा आपको? 0। ओके सॉरी सर। और सर अगर इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये माइनस लॉग एक्स ही तो हो जाएगा। हाँ, आप इसको इस तरीके से भी वैसे कर सकते हो, log 1 माइनस log x, ठीक है, तो माइनस log x हो जाएगा। तो यही इससे ही ट्रेस कर लेना, फिर ये इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, है ना? ठीक है, देन आज की क्लास थोड़ी लर्निंग आउटकम रहा होगा सभी के लिए। सर यस Yes, sir. सर कर दे लीव। हाँ, लीव कर दीजिए आप, हो गई आज की क्लास। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Will sir. you show the graph of log mod x? थैंक यू सर। Thank you, Excuse me, sir. sir. Excuse me, sir.